Hello everyone, welcome to my class. Today we will learn new poem Wind of class 9 from the book Beehive. This poem is written in Tamil by Subramaniam Bharati and it is translated in English by A.K. Ramanujan. So let's start the poem, but before going further I would like to sum up this poem in front of you. In this poem, the poet used wind as a metaphorically, right? In this poem, wind represents not just as a wind as it blows, as we all know that sometimes we see that wind blows very fastly, right? And in this poem, wind represents the difficulties, challenges, and the hardships of life that we usually face in our day-to-day life. And the other aspect of the by the wind, the poet wants to suggest us, or the poet wants to convey the message that how this wind can be destructive for us if we will not take it seriously. But wind can be our friend also. Wind जो है वो अगर it could be destructive तो it could be our friend also. अगर ये destructive हो सकती है तो ये हमारी फ्रेंड भी हो सकती है. ये हमारी फ्रेंड कैसे हो सकती है, इसके लिए पोएट ने बताया है कि we have two types of persons. First, those who are very strong enough, and second, those who are weak. The person who is strong, not just as physically, by mentally also, for them wind is like a friend, because whatever the causes, whatever the destructions caused by the wind will not affect those persons who are strong by mentally or physically. By mentally or physically means to say that physically, if you are strong, if you are healthy, your physics are strong. But if you are weak, your body physics is not good, and you are very weak, you are very frail, so that will be affect you very fastly, right? But on the other hand, you have to strong mentally as well. Suppose as the difficulty comes in our life, and if we people are not strong enough, so that difficulties, that's hardships, that's obstacles will definitely affect us, and we all will become shattered and hopeless and helpless that what should we do, and we will definitely affect us, and we will try to make us understand that we are not enough too strong to face these difficulties, and we will be sad in our life. In order to face all these difficulties, we have to make ourselves strong by physically as well as mentally. So let's start the poem. Wind, come softly. Don't break the shutters of the window. Don't scatter the paper. Don't throw down the books on the shelf. In the first paragraph, here you can see the poet is requesting to the wind, as the wind is blowing very fastly. जो हवा है वो बहुत तेज चल रही है, तो जो पोएट है वो विंड से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज विंड थोड़ा सा धीरे चलो, सॉफ्टली चलो. सॉफ्टली है मींस स्लोली, थोड़ा सा स्लोली चलो, आप बहुत तेज चल रही है. और आपके तेज चलने से आपने क्या कर दिया, बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन कर दिया है. क्या डिस्ट्रक्शन कर दिया है आपने, क्या करा है, जितने यू ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो. शटर्स मतलब जैसे जिसके थ्रू जो बीम बनी होती है उसके थ्रू जो विंडो पैनल्स की, आपने क्या करा, उन विंडो पैनल्स को तोड़ दिया, और आप तोड़ के उन्हें अंदर आ गई हो, इतनी तेज चल रही हो. आपने क्या करा, यू स्कैटर्ड द पेपर्स. आपने जितने भी पेपर्स जो रखे हुए थे उन सबको स्कैटर्ड कर दिया. स्कैटर्ड मतलब स्प्रेडेड इनटू द डिफरेंट डायरेक्शंस, पूरी जगह से बिखरा देते हैं. आपने सारे पेपर्स को क्या कर दिया है, बिखरा दिया है. डोंट थ्रो देम डाउन ऑन द बुक शेल्फ. और आपने क्या करा है, जितनी भी बुक्स, द बुक्स व्हिच वर केप्ट ऑन द शेल्फ, यू मेक देम फेल डाउन. आपने उनको क्या करा है, नीचे गिरा दिया. तो पोएट क्या कर रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इतनी तेज से मत चलो, और आपने इतना यू कॉस्ट सो मच डिस्ट्रक्शन. इन द नेक्स्ट पैराग्राफ पोएट सेज, there, look what you did. Threw them all down. You tore the papers of the book. You brought rain again. In the second paragraph, poet is accusing to the wind. जो poet है वो wind पे blame कर रहे हैं, उन पे इल्जाम लगा रहे हैं कि आपने क्या करा, कि देखो तुमने क्या कर दिया, तुम इतनी तेज चली और तुमने क्या कर दिया, तुमने बुक्स के जितने भी पेपर, you tore all
ऑल द पेजेस ऑफ द बुक्स, की बुक्स जो है उसके जितने भी पेपर है, तुम इतनी तेज चली और हवा से खिड़की से अंदर आई और सारे जितनी भी किताबें थी उनके सारे पन्ने फाड़ दी हैं। आपने कभी कभार देखा होगा कि आप जो बुक है अगर आप उसको बहुत तेज हवा में रख देते हैं तो हमने देखा होगा कि उसके जो पेजेस है वो बहुत जल्दी टर्न होना शुरू हो जाते हैं, जिस वजह से वो फट भी जाते हैं। और साथ ही साथ फिर पोएट में कह रहे हैं कि आपने क्या करा, और इस हवा के साथ साथ आप अकेली काफी नहीं थी और इसके साथ साथ आपने क्या करा, और भी ज्यादा बारिश भी लेके आई। सो इन द सेकेंड पैराग्राफ द पोएट वांट्स टू टेल अस दैट wind comes all of sudden as the problems and difficulties and hardships in our lives comes all of sudden and we will not get it, right? And you can't say them that please don't come, आप नहीं कह सकते उन परेशानियों को कि हमारी लाइफ में मत आओ। अब यहाँ पे जो दूसरी लाइन है, you brought rain again, आप देखो कि विंड तो इतनी तेज चली रही थी, वही काफी नहीं थी, उसके साथ साथ बारिश भी लेके आई, यानी कि एक प्रॉब्लम्स के साथ साथ वन प्रॉब्लम लीड्स टू द सेकेंड प्रॉब्लम। तो एक प्रॉब्लम के साथ साथ जब आपकी लाइफ में डिफिकल्टीज आती है तो उसके साथ एक प्रॉब्लम के साथ दूसरी समस्या भी साथ में आती है और हमें नहीं समझ में आता है कि हम क्या करें। लेट्स कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स, frail crumbling houses, crumbling door, crumbling rafters, crumbling wood, crumbling bodies, crumbling lives, crumbling heart. The wind god winnows and crushes them all. In the third paragraph, is poet is showing the destructive power of the wind, कि जो wind है वो कितनी strong है, जो हमारी लाइफ की difficulties है वो कितनी ज्यादा, problems जो हैं वो कितनी ज्यादा strong है। वो ये कह रहे हैं कि तुमने क्या करा कि you are very clever at poking fun at weaklings. Weaklings, the people who are not strong by physically as well as mentally. कि तुम क्या करती हो कि जो लोग पतले हैं तुम उनका मजाक उड़ाती हो। अब उनका मजाक कैसे उड़ा रहे हैं? पतले यानी कि जो कमजोर हैं, जो वीक है, उन लोगों का मजाक उड़ा रही है विंड। विंड यानी कि प्रॉब्लम, हमारी लाइफ में जो प्रॉब्लम आती है तो वो हमारा मजाक उड़ा के चली जाएगी, क्योंकि अगर हम क्या है, वीक हैं। तो उसी तरह से कि तुम क्या बहुत चालाक हो, तुम वीकलिंग्स का जो कमजोर है उनका मजाक उड़ाती हो। कैसे मजाक उड़ाती हो? फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, crumbling doors, crumbling rafters, crumbling wood, crumbling bodies, crumbling lives and crumbling hearts. Frail मतलब weak, weak के लिए क्या यूज किया गया है यहाँ पे? frail word। और crumbling मतलब हम बल्कि किसी भी चीज को चकनाचूर कर देना, और you can say that broken something, right? कि आप क्या कर रहे हो, जो लोग कमजोर हैं, कमजोर लोगों के क्या कर रहे हैं, आपने क्या करा हुआ है, कमजोर घर तोड़ दिए हैं सारे के सारे, कमजोर दरवाजे आपने तोड़ दिए हैं, कमजोर राफ्टर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर्स, राफ्टर इज लाइक अ स्लोप बीम, जैसे आप घर देखे होंगे, घर में ऐसे स्लोप बीम्स होते हैं जिसके हेल्प से जो घर है वो टिके रहते हैं। आपने वो राफ्टर्स तक भी तोड़ दिए हैं, आपने सारी वुड्स तोड़ दी हैं, घर के जितने भी विंडोज वगैरह हैं। आप यू क्रम्बल द बॉडीज ऑल्सो, बॉडीज हेयर फॉर द पर्सन, यानी कि जो वीक लोग हैं आपने उनको भी मसल कर रख दिया है। क्रम्बलिंग लिव्स, लोगों की जिंदगी कैसे तबाह हो गई है, एंड क्रम्बलिंग हार्ट्स, लोगों के जो लोग कमजोर दिल के हैं उनको भी आपने खत्म कर दिया। अब इसमें कहने का मतलब है कि when the difficulties and the problems comes in our life and you can't say that please don't come in our life because we people are weak and we people are not able to enough to face all these difficulties। जब आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं तो आप उन्हें ये नहीं कह सकते कि आप हमारी लाइफ में मत आइए क्योंकि हम तो कमजोर हैं, हम आपको फेस नहीं कर पाएंगे। तो वो विंड इतनी तेजी से ब्लो कर रही है हमारी लाइफ में, जब जिंदगी में प्रॉब्लम आती है तो वो इतनी तेजी से आती है कि जितनी कमजोर चीजें हैं यानी कि कमजोर लोग हैं उनको वो तबाह करके चले जाती है, उनकी पूरी लाइफ को वैनिश करके चल जाती है, एंड इट गिव्स अ वेरी बैड इम्पैक्ट on their life because they people are not able to combat the challenge of wind or the difficulty comes are in life, right? और इसी वजह से वो इतनी सारी distractions कर सकती है। तो सब second paragraph they are saying one more thing, see the line, the wind god winnows and crushes them all, कि जिस तरह से god winnows, god है यहाँ पे पवन देवता के लिए इस्तेमाल किया गया है कि वो जिस तरह से विनोस को करते हैं। विनोस क्या होता है? एक शेफ जैसा होता है। आपने देखा होगा कि एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर ऑल्सो, कि इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो लेडीज हैं वो क्या कर रही है, उनके हाथ में शेफ है और शेफ से वो क्या कर रही है, जो ग्रेन है उनको इस तरह से हिला रही है, विंड ब्लो कर रही है और वो हिला रही है। अब इसमें हिलाने से क्या हो रहा है कि जो ग्रेन जैसे गेहूं अगर उसमें है, गेहूं में से जो कचरा है वो
हवा चलने की वजह से वो सारा का सारा कचरा क्या हो रहा है, निकल जा रहा है बाहर, ठीक है। तो आपने इससे एक और चीज सजेस्ट होती है कि व्हेन द विंड कम्स और द डिफिकल्टी कम्स इन लाइफ, जो वीक पीपल होते हैं उनको क्या कर देती है विंड, स्ट्रॉन्ग लोगों से अलग कर देती है। जैसे आप देखो गेहूं है, गेहूं क्या है, मोटा है, स्ट्रॉन्ग है, तो हवा चल रही है तो आप देखो कि उस विंडो में से गेहूं नहीं गिरती है नीचे, क्योंकि गेहूं क्या है, मोटी, और जो बाकी का जितना भी शेफ बचा होता है वो सारा का सारा क्या होता है, नीचे गिर जाता है, क्योंकि वो हल्का है। तो विंड क्या करती है, कमजोर लोगों को और कमजोर बना देती है, और जो मजबूत लोग होते हैं, स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं, दे इमर्ज आउट मोर स्ट्रॉन्गर, वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं, क्योंकि उनमें दे पीपल आर एबल टू कॉम्बैट द चैलेंज ऑफ देयर लाइफ। जो उनकी लाइफ में जितनी भी दिक्कतें आती हैं उन सबको फेस करने के लिए रेडी रहते हैं, राइट। He won't do what you tell him. So come, let's build strong homes, let's join the doors firmly, practice the firm the body and make the heart steadfast. अब नेक्स्ट पैराग्राफ में जो पोएट है वो हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप विंड को कहोगे कि तुम मत आओ, तो विंड हमारी बात नहीं मानेगी, वो करेगी जो वो चाहती है, राइट। सो टू escape all these difficulties, to all problems, इन सब प्रॉब्लम्स से को फेस करने का या इनसे निकलने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो क्या तरीका है जो पोएट हमारे साथ शेयर करते हैं। सो कम, लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग हाउसेस, लेट्स जॉइन द डोर्स फर्मली, प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी एंड मेक द हार्ट स्टेडफास्ट। स्टेडफास्ट, यहाँ मेक द हार्ट स्टेडफास्ट, स्टेडफास्ट मतलब डिटरमाइन। तो वो कह रहे हैं सिर्फ एक ही तरीका है, दैट वी हैव टू मेक आवरसेल्फ डिटरमाइन, वी हैव टू मेक आवरसेल्फ स्ट्रॉन्ग इनफ टू combat or to face all the hardships and the challenges in our life by mentally as well as physically। वो कहते हैं कि चलो आज फिर क्या करते हैं, हम मजबूत घर बनाते हैं, मजबूत दरवाजे बनाते हैं, और अपनी बॉडी को भी क्या कर लेते हैं, बहुत ज्यादा फर्म कर लेते हैं, स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, ताकि कोई भी हवा, कोई भी परेशानी ना हमारे घरों को कुछ कर पाए, ना हमारे दरवाजों को तोड़ पाए, और ना ही हमारी बॉडी को भी क्रम्बल कर पाए। चलो कुछ ऐसा करते हैं, एंड मेक द हार्ट स्टेडफास्ट। स्टेडफास्ट मतलब फर्म, इतना मजबूत कर लेते हैं, यानी कि अपने मेंटली भी इतने स्ट्रांग हो जाते हैं कि हमारी लाइफ में चाहे कितनी डिफिकल्टीज, कितनी प्रॉब्लम्स क्यों ना आए, वी आर ऑल्सो इनफ टू face all these difficulties in this life, right? Then afterwards the poet says that do this and the wind will be friends with us. The wind blows out weak fires, he makes strong fires grow and flourish. अब पोएट कहते हैं अगर हमने अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग इनफ कर लिया, इतना मजबूत बना लिया, एंड इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हम अपनी लाइफ में कि हमारी लाइफ में कोई भी डिफिकल्टीज आए और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, एंड वी पीपल आर रेडी टू फेस इट, तो इससे क्या होगा कि जो विंड है दैट विल बिकम आवर फ्रेंड एंड वी विल इमर्ज आउट मोर स्ट्रॉन्गर, हम अपने आप को और स्ट्रॉन्ग करके उभार पाएंगे अगर ऐसा होता है, और विंड भी हमारी क्या हो जाएगी, दोस्त। क्योंकि जो विंड है वो क्या करती है, विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स। विंड क्या करती है, जो लोग कमजोर हैं उनको और कमजोर करती है, बट ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स ग्रो एंड फ्लरिश। लेकिन जो लोग क्या है, स्ट्रॉन्ग है, ये उनको और फ्लरिश करती है, और साधन संपन्न बनाती है, यानी कि जो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है उनकी लाइफ में कितनी भी डिफिकल्टीज आ जाए वो उन्हें और स्ट्रॉन्ग बनाती है। कहने का मतलब है कि जब कभी भी हमारी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो एवरी प्रॉब्लम स्टार्ट विद द सॉल्यूशन इफ वी पीपल आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू फेस दैट, राइट। जैसे हमारी लाइफ में कोई भी डिफिकल्टी आती है, अगर हम स्ट्रॉन्ग है कि नहीं, हमें इसका सामना करना है, तो हमें कुछ ना कुछ और आइडियाज आते हैं उस मुसीबत के टाइम पे, और हर प्रॉब्लम में और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना के जाती है। तो दैट्स व्हाई द पोएट यूज द वर्ड द विंड मेक स्ट्रॉन्ग फायर रॉर एंड फ्लरिश, और भी ज्यादा क्या करती है। जैसे आपने देखा होगा कि अगर एक जंगल में आग लग जाती है, अगर थोड़ी सी और हवा चल जाए तो वो आग और तरफ चारों तरफ और तेजी से फैल जाती है। उसी तरह से अगर आप स्ट्रॉन्ग हैं और आपकी लाइफ में डिफिकल्टी आती है और आप रेडी है उस चैलेंज को फेस करने के, तो आप और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन के बाहर निकलेंगे, आप और भी ज्यादा क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे। हिज फ्रेंडशिप इज गुड, वी प्रेज हिम एवरी डे। और फिर विंड हमारी क्या बन जाएगी, दोस्त बन जाएगी, फिर हमें वो डिस्ट्रक्टिव नहीं लगेगी, वो हमें क्या लगेगी, फ्रेंड लगेगी। इन दिस जब विंड हमारी दोस्त बन जाएगी तो हम उसे फिर उसकी बुराई नहीं करेंगे कि विंड बहुत डिस्ट्रक्टिव होती है, वी विल प्रेज देम। एंड इन द सम अप also suggest that if we people are strong, so we should encounter all the situations
बोल्डली, बहुत ही फर्मली, बहुत ही बोल्डली हम किसी भी सिचुएशन को बहुत अच्छे से एनकाउंटर कर सकते हैं, उसे फिनिश कर सकते हैं. In the apart from that, he also suggests that कि we should face all the challenges with greed, firmly, and we should deal all the situation without any fear. And it could be possible only then if we people are strong enough. So we must be friends with the hardships, obstacles in our life. I hope you all understood the poem well. Thank you.